हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर मॉडल्स। ऑलरेडी मैंने लीनियर मॉडल्स के लेक्चर्स मेरे चैनल पे है, बट वो लेक्चर्स उनकी लेंथ जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे की वीडियोस है। बट दिस लेक्चर सीरीज विल बी ऑन एन एवरेज 30 to 40 मिनट्स वीडियो। हर एक वीडियो का जो लेंथ होगा वो 30 to 40 मिनट्स होगा, and we will see the concepts in easier way। ठीक है, लीनियर मॉडल्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। लीनियर मॉडल्स सी, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा y is equal to mx plus c। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। इसमें आपके पास क्या क्या है? इसमें आपके पास एक तो इंटरसेप्ट है और एक स्लोप है। दिस c रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट and this m represents slope। ठीक है, और इसमें क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस x वर्क्स एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y की वैल्यूज डिपेंड है x पे। जब हम x की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो y ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो जितनी बार हम y की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे, जितनी बार हम x की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे, y ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। सो ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था। सिमिलरली हम लीनियर मॉडल्स में भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि जब हमारे पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, तब हम इसको डील कैसे करेंगे। एंड दिस m or c represents parameters when we talk about the linear models। जब हम linear models की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक तो वेरिएबल्स होंगे और पैरामीटर्स होंगे। तो अगर मैं लीनियर मॉडल को डिफाइन करूंगा, इट्स अ बेसिकली it is a mathematical equation involving random variables mathematical variables and parameters which are linear in the parameters and in the random variables and in the random variables। तो सी, मैंने क्या कहा? लीनियर मॉडल जो है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें रैंडम वेरिएबल्स, मैथमेटिकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड जिनकी पावर क्या होगी? ओनली वन। देन दे आर कॉल्ड लीनियर। राइट। सो एग्जांपल y is equal to beta naught plus beta 1 x plus beta 2 x2। this is my linear model। और एक ऐसा एग्जांपल समझते हैं, ये कहां पे यूज होगा। लेट्स सपोज y represents yield of crop, right, which is a function of quantity of fertilizer, irrigation
temperature. Or we can write this as y is equal to x1 quantity of fertilizer, x2 centimeters of irrigation, and x3 degrees of temperature. This is in centimeters, this is in kgs, right? So अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, we need y is equal to 2x1 kgs of fertilizer plus 3 times x2 in centimeters, that's irrigation, 3x2, that's 3 times irrigation, plus 4 times temperature. This is a linear model. So see, हमने क्या बताया यहाँ पे कि जो लीनियर मॉडल है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें रैंडम वेरिएबल्स, मैथमेटिकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं. सी यहाँ पे जो 2, 3, 4 they will be our parameters and x1, x2, x3 will be our variables, right? So y is dependent on the values of x1, x2, x3 and the power is 1. The power on variables is 1, but betas are known here, right? Whenever we talk about the linear model, we talk about it should be linear in parameters as well as in variables, right? In variables as well. In linear models, we studied two types of models. First one is simple linear regression model. Second one is multiple linear regression model. See, in simple linear regression model, we have only one variable. Only one variable is involved. But in multiple linear regression model, we have more than one variables. Let's see. Simple linear regression model is like this. Y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon, and this is equal to y is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus epsilon, right? So simple linear regression model involves only one variable and multiple linear regression model will involve more than one variables, right? So let's talk about simple linear regression model in this lecture. Before starting simple linear regression model, we will see what's the model. In whenever we talk about the model, there will be input variables as well as output variables. और जब हम output variables पढ़ते हैं, that is our y and this is values of xi, x1, x2 up to so on. So y is equal to function of x1, x2 up to xn. ठीक है, मॉडल हमारे पास गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है. इट्स बेस्ड ऑन द फीचर्स कि हमारे मॉडल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है. ठीक है, क्या क्या होते हैं मॉडल में? वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, और मॉडल कैन बी गुड और बैड. इट्स बेस्ड ऑन आवर चॉइस कि हम क्या ले सकते हैं. क्या हम बैड फीचर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या गुड फीचर्स को? ऑब्वियसली गुड फीचर्स को. A small portion of population वो representative होना चाहिए. Population should be present in the sample. On the basis of these sample of data,
we build a model, right? So इतना तो आपको पता होगा मॉडल में क्या क्या है, इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स, एज वेल एज मॉडल में क्या क्या है, वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स. Let's suppose what's this? This is equation of a straight line. Equation of a straight line. So y is equal to mx plus c. You can see this equation y is equal to mx plus c has slope as well as intercept. So see, this will be my c, that's intercept, कि origin से कितना दूर है वो, ठीक है. सी, क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट है कुछ? नहीं, यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है, ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है. यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट है. देखो ओरिजिन से कितना दूर है, दिस इज द इंटरसेप्ट, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट्स tan थीटा इज स्लोप इज इक्वल टू m. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, राइट? क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं ना, tan थीटा ही तो स्लोप होता है जब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. अच्छा, if y is equal to 2, x is equal to unknown, beta 1 is equal to 2, beta 2 is equal to 3, क्या ये हमारे पास मॉडल बनाएगा, और वी कैन से इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बनाएगा? See, 2 is equal to beta 1 2 plus beta 2 3x, ये मॉडल नहीं बनाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है वो ऑलरेडी गिवन है, बट जो इनपुट वेरिएबल है वो अननोन है, तो ये हमारे पास मॉडल नहीं बनाएगा, ठीक है, ये हमारे पास मॉडल नहीं बनाएगा. मॉडल तब बनाएंगे जब हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें हमारे पास x भी अननोन होगा, y भी अननोन होगा, and m and c we can calculate it by the partial differentiation. That's for maxima and minima. With the help of maxima and minima we can find the values of m and c. That method is called a least square estimation. With the help of least square estimation we will find the parameters. याद रखना, with the help of least square estimation we will find the parameter. वो हम देखेंगे simple linear regression analysis में भी और multiple linear regression analysis में भी, right? Now y is equal to beta naught plus beta 1 x, y is equal to beta naught plus beta 1 square x, y is equal to beta naught plus beta 1 x square. क्या ये इनमें से लीनियर मॉडल्स कौन कौन सा है? लेट्स सी. दिस इज अगेन सिंपली डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, आप पूरा पावर 1 ले लो, ठीक है, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1. सो दिस इज लीनियर. क्या है ये? लीनियर. देखो पैरामीटर्स पे भी पावर 1 है और वेरिएबल्स पे भी पावर 1 है, सो दिस इज लीनियर. इस पे देखो, this is linear in variables but not linear in parameters, so this is non-linear. और ये तो होगा ही नहीं, non-linear. अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये linear है कि non-linear है? Whenever we do partial differentiation with respect to x, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स आया तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मॉडल है वो लीनियर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स. सी, अगर हम इसकी बात करेंगे dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 2 बीटा x. सो देखो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ बीटा हुआ, तो ये क्या होगा?
यहाँ sorry I did a mistake here. dy upon d beta is parameter. Whenever we do differentiation with respect to beta, अगर ये independent of parameters आया तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास मॉडल है वो लीनियर मॉडल होगा। मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे dy अपॉन डी बीटा नॉट देखेंगे हम, ये क्या आएगा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और इसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट कर रहे हैं ना, तो ये वाली टर्म ओनली कंसीडर होगी। सो डी वाई अपॉन डी बीटा नॉट इज इक्वल टू 1, इसका तो 1 होगा, इसके रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना। एंड अगर हम दूसरा देखेंगे डी वाई अपॉन डी बीटा 1 दैट इज इक्वल टू ओनली बीटा 1 का 1 x का x, तो दिस इज लीनियर। क्या है ये? लीनियर है। क्या है ये? लीनियर है। समझो, फिर से समझो इसको हम कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास एक मॉडल गिवन है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटास। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आया दैट्स बीटा, तो हम बोल सकते हैं वो लीनियर है, अदरवाइज नॉट। दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरी एग्जांपल y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 स्क्वायर x। अगर हम करेंगे dy अपॉन डी बीटा नॉट, this is partial differentiation, this is not whole differentiation, this is partial differentiation with respect to beta naught। so ये आएगा 1 dy upon d beta 1 is equal to 2 beta 1 x, 2 beta 1 x, 2 beta 1 x। क्या आएगा ये? नॉन लीनियर। और ये तो ऑलरेडी है ही, पावर तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये तो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो ये तो नॉन लीनियर, ये तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है। ठीक है, नाउ नॉन लीनियर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू। नॉन लीनियर को हम लीनियर में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट लीनियर, हाउ टू कन्वर्ट नॉन लीनियर इनटू लीनियर? Convert non-linear into linear. Now see how. Let's suppose y is equal to beta naught x beta 1, as this is non-linear. This is non-linear. Differentiate कर लो तो independent, ये dependent on betas आएगा। So see, इसको हम कैसे करेंगे? Taking log on both sides. So we will get log y is equal to log beta naught plus beta 1 log x, right? So let's write this as, let's consider that log y is y and log beta naught is beta naught plus beta 1 and consider this as x. So क्या बना ये? This becomes linear. log लेके हम लीनियर बना सकते हैं। कोई भी नॉन लीनियर होगा, अगर हम उस पर log ले लेंगे उसको हम लीनियर बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम लीनियर बना सकते हैं। नाउ सी, मैंने लिखा था y i is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। नाउ इसमें तो आपको पता है ये क्या है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है, ये पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है। देन व्हाट्स दिस? एप्सिलॉन आई। व्हाट्स दिस? while I is equal to 1 2 up to so on. What's ei? In regression or in linear models, this epsilon I will be known as a random error. एंड हम कंसंट्रेट इसी पे करते हैं लीनियर मॉडल्स में ताकि ये क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। वी एलिमिनेट दिस एरर
when we are fitting the data, तो हम वहां पे random error को ही खत्म करते हैं. It's basically the distance between observed and calculated value. Error can be negative or positive. ठीक है. So, अगर मैं देखूंगा, अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि एरर होता क्या है. सी, एरर होता क्या है. 2D ग्राफ से समझते हैं. लेट सपोज ये मेरी एक फिटेड लाइन है. दिस इज माय फिटेड लाइन. y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x. अब ये फिटेड लाइन कैसे है? जब भी एरर कंपोनेंट इसके साथ नहीं आएगा, दैट लाइन इज फिटेड लाइन. ठीक है. नाउ कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ पॉइंट्स. कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे, कोई पॉइंट यहाँ पे. सी दिस इज माय fitted line. ठीक है. This is my fitted line. So distance between this fitted line to the point is called error. This is E1. This is E2. This is E3. This is E4. This is E5. So this is X1, Y1, X2, Y2. Point है ना ये. X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5. So see the distance between the 2 points, the distance between the line and the point for X1, Y1 is E1. Is E1. तो इसको हम कहते हैं एरर. अब इसी को हमें एलिमिनेट करना है. इन्हीं पॉइंट्स को हमें किस पे फिट करना है? फिटेड लाइन पे. इन्हीं पॉइंट्स को, ये पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे, तब हम कहेंगे जो हमारे पास एरर 1 है वो एलिमिनेट हो गया है. वो एलिमिनेट हो गया है. और जो ये EI है, इसको हम एज्यूम करते हैं दैट E follows normal 0, sigma square in linear modes. याद रखना, error EI will follow normal 0, sigma square. It's normally distributed. ठीक है. It's normally distributed. जब इसका एरर का ये क्या है? दिस इज EI follows normal 0, sigma square. तो जब अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ yi ले लेंगे, वो क्या होगा? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ xi प्लस 0. क्योंकि एरर का क्या है? 0 है. तो हमारे पास ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस. ठीक है. फिलहाल आप ये याद ही रखो क्योंकि ये हमें करना है, ठीक है. तो रिमूव द एरर, वो यूज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. वो हम करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये तो इंट्रोडक्शन है ना, अभी ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है. ठीक है. तो कैसे करते हैं वो? हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. देखो, जब हमने ये एजम्पशन ले लिया कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे निकल के आई. ठीक है. ऐसे निकल के आई. तो हमें क्या करना है? हमें इन दोनों बीटास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यही हमारा काम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन. मतलब हम ज्यादा से ज्यादा एक तो एरर को कम करते हैं या एरर को खत्म ही कर देते हैं, और पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं. अब ये एरर क्या होता है? एरर मैंने आपको बता दिया, इट्स रैंडम एरर, और जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इट्स बेसिकली, इसको ऐसे लिखते हैं, EI इज इक्वल टू yi minus yi hat. That's estimated value. This is the observed value minus estimated value. ठीक है. और कभी कभी एरर को ऐसे भी लिखते हैं, इसमें देख लो आप कि EI is equal to yi minus बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x. ठीक है. बीटा 1 x. इस इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए, इसको रिमेंबर कर लेना. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी. एरर को हम ऐसे लिख सकते हैं. इट्स बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, और वी कैन से दिस इज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू और दिस इज observed value. Is error is basically the difference between, or we can say difference between, ये तो response भी है ना, it's basically the difference between response and the fitted value. Fitted is this, जो हमने fit किया है. observed minus fitted, ये भी आप बोल सकते हो. observed minus fitted. ठीक है. observed minus fitted. अब ये रेजिडुअल का काम क्या है इस लीनियर मॉडल्स में? रेजिडुअल बस यूज होते हैं कि
हमारा जो मॉडल है, जो हमारे पास मॉडल में गिवन डेटा है, वो अप्रोक्सीमेटली उसको हम जज करते हैं कि मॉडल में हमारे पास डेटा जो है उसमें अगर एरर है या नहीं है, वो हम एरर के बेसिस पे जज करते हैं कि मॉडल कैसा होगा। जब एरर होगा तो मॉडल अच्छा नहीं होगा, जब एरर खत्म होगा तो मॉडल अच्छा होगा। ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं एरर में, ठीक है। Now let's write the equation again. Y is equal to beta naught plus beta 1 x plus, this is equation number 1. This is my equation number 1. So इसको मैंने क्या बोला था? This is my response variable. ठीक है, beta naught beta 1 are my parameters and this x is my, ये x क्या होगा मेरे पास? Is it independent or dependent? This is independent variable. और इसको मैं क्या कहता हूं? दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दिस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एंड दिस ei is my error, random error. This is my error, that's random error. Beta naught and beta 1 are my slope, yeah, slope and intercept, that's parameters. ठीक है, एंड इसकी कुछ assumptions है, इसके कुछ assumptions है। नंबर 1 is expectation of ei is equal to 0, variance of ei is equal to sigma square. Number 3, expectation of ei ej is equal to 0 for all I is not equal to j. Number 4, covariance between ei ej will also be equal to 0. Why? This means that there should be no multicollinearity, right? There is absence of multicollinearity. 0 for all I is not equal to j, right? I is not equal to j. Whenever we are talking about the linear in parameters, then we do not consider the degree of x. See, a model is said to be linear in parameters it shall be linear or non-linear in variables. से अगर हमारे पास एक मॉडल है, आपको ये कहा गया है कि क्या ये लीनियर है पैरामीटर्स में, तो आप x की डिग्री को कंसीडर नहीं करेंगे। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर आपको लीनियर में बोला है तो लीनियर में होगा ही होगा। लेट्स राइट एन एग्जांपल, y is equal to beta 1 plus beta 2 x square. This is linear in parameters but not linear in variables. So समझो, अगर आपको मॉडल ऐसे गिवन है, मॉडल इज सेड टू बी लीनियर इन पैरामीटर्स, देन आपको x की डिग्री को क्या करना है? कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है। और जो यहाँ पे जो x है ना, समझो, ये जो x है हमारे मॉडल में, ये जो x है कहाँ गया, जिसको मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया है, दिस इज नॉन स्टोकास्टिक, मतलब दिस इज नॉन रैंडम, दिस इज नॉन रैंडम, दिस इज नॉन रैंडम। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब है नॉन रैंडम, स्टोकास्टिक का मतलब होता है रैंडम। ये रैंडम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ चांस, समझो, ठीक है।
ठीक है। ना सी, मॉडल को हम इन मैट्रिक्स नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ ऐसे लिखते हैं, सी y curl is equal to x बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन कर्ल। अब ये कर्ल क्या है ये समझो। मैंने लिखा है x is equal to x, ठीक है। x curl is equal to x1, x2, x3 up to xn. This curl represents vector of variables, that's x1, x2, x3। या मैं बोल सकता हूँ कि epsilon curl represents e1, e2, e3 up to cn. It only represents the vector, ठीक है। curl represents vector, curl represents vector। तो see, this is my matrix notation of linear model। याद रखना ये मॉडल का एक मैट्रिक्स नोटेशन है। अगर मैं लिखूं हमारे पास for y is equal to x beta 1 plus epsilon 1, so ये क्या बना, ये बना लीनियर मॉडल बट सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर मैं ऐसे लिखूं y1 y2, this will become x beta 1 beta 2 plus epsilon 1 epsilon 2। ये क्या बना मेरे पास, लीनियर मॉडल in two variables and in two parameters, ठीक है। तो ऐसी अगर मैं इसको मैट्रिक्स नोटेशन में अच्छे से लिखूंगा तो ये होगा y is equal to x beta curl, y curl is equal to x beta curl plus epsilon curl। So y curl will be represented as y1 y2 up to yn, this is n cross 1 वेक्टर। और x तो सिंपली हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, this is x11 x12 up to x1n, this is xnn या np, xnp, this is 1p, this is x21 x31 up to xn1। ये हमारे पास एक और क्या है, मैट्रिक्स है which is of the order n cross p, and beta curl is equal to beta 1 beta 2 up to beta p, p cross 1, and e curl will be e1 e2 up to en, this is n cross 1, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन है। और अगर हम सिंपली लिखेंगे कि y curl will follow IID normal x beta curl sigma square identity। ये मैं बताऊंगा आपको आगे ये होता क्या है, बट आपको याद रखना है कि मॉडल कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y curl follows normal x beta curl sigma square identity। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। जो हमारे पास रेस्पॉन्स वेरिएबल है दैट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो तो आपको पता ही है कौन सा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें, y कर्ल विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट क्या होगा, x होगा। बाकी क्या है हमारे पास, पैरामीटर्स है, ठीक है। बाकी क्या है हमारे पास, पैरामीटर्स है। और एप्सिलॉन क्या है, रैंडम एरर कंपोनेंट। एप्सिलॉन क्या है, रैंडम एरर कंपोनेंट। Now classification of linear model, classification of linear model, so see in classification of linear model, what's xij? Xij are known variables in linear model। So see, if xij are indicator variable,
इंडिकेटर वेरिएबल, अगर xij इंडिकेटर वेरिएबल है तो जो लीनियर मॉडल है दैट विल बी दी सुटेबल फॉर एनोवा टू स्टडी दी एनोवा। अगर xij क्या इंडिकेटर वेरिएबल है तब लीनियर मॉडल इज सुटेबल फॉर, तब हम एनोवा पढ़ सकते हैं, दैट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वो भी एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है। दूसरा अगर all xij's आर इंडिपेंडेंट, अगर सारे xij's क्या है इंडिपेंडेंट है, देन जो लीनियर मॉडल है वो suitable होगा to study the regression analysis, to study the regression analysis, to study the regression analysis। Number 3, अगर all xij's are indicator variables, are indicator variables and some are independent variables, and कुछ independent भी है, कुछ independent भी है, तब जो लीनियर मॉडल है that will be the suitable for study of ANOVA, that is analysis of covariance। C और xij जब इंडिकेटर होगा तब हम इसको यहाँ 0 तो या 1 वैल्यू देते हैं, ये तो आपको पता ही है। सी जब xij इंडिकेटर वेरिएबल है तो लीनियर मॉडल इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ एनोवा। जब ये इंडिपेंडेंट है तो ये सुटेबल फॉर रिग्रेशन। जब ये इंडिकेटर वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एग्जिस्टेंस है उस मॉडल में, तब हम बोलेंगे वो मॉडल किसके लिए सुटेबल है, एनोवा के लिए। ठीक है, ये था ए। नाउ बी, अगर बीटा जेज आर अननोन पैरामीटर्स, तो अगर बीटा आईजेज आर फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स या एडिटिव कॉन्स्टेंट्स या रैंडम वेरिएबल, 3 केसेस हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड कांस्टेंट है बीटा आईजेस, या तो एडिटिव कांस्टेंट है, या तो रैंडम वेरिएबल से, या तो रैंडम वेरिएबल से। तो सी अगर बीटा आईजेस आर फिक्स्ड कांस्टेंट्स then the model is said to be the fixed effective model, fixed effective model। अगर बीटा जेज आर एडिटिव कॉन्स्टेंट्स, इनको हम ऐड कर सकते हैं और इनका कोफिशिएंट 1 है, then it's called additive constant। Sometimes one of the beta j's occurs in the mode equations with coefficient of 1, then it is said to be the additive constant। मतलब इनको ऐड कर सकते हैं, that's known as the additive constant when beta j's are constants। तो तब हम उनको additive constants भी बोल सकते हैं। ठीक है, when beta j's are random variables, then the linear is said to be the random effect model, random effect मॉडल और फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। ये दो मॉडल्स आपको ज्यादातर यूज होंगे एनोवा में या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में, फिक्स्ड इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल। ठीक है, अब एक और भी है मिक्सड इफेक्ट मॉडल, वो भी एनोवा में है, लेकिन वो होगा क्या, वो होगा जब कुछ बीटास कॉन्स्टेंट्स होंगे और कुछ बीटास रैंडम वेरिएबल्स होंगे। मिक्सड में क्या आएगा, कुछ फिक्स्ड है कुछ रैंडम है, तो ये बनाता है मिक्सड इफेक्ट मॉडल। ठीक है, मिक्सड इफेक्ट मॉडल। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लीनियर मॉडल्स, एंड अगर कुछ रह जाता है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। But next lecture में for sure we will see simple linear regression analysis।